ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عزت، علم، آزادی، خوشحالی اور صحت کی دعا مانگیں۔ جو قدرتی حسن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ آپ کو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گا۔ یورپ میں بلند ترین پہاڑ کی اونچائی 5000 میٹر ہے، جبکہ پاکستان میں 7500 میٹر کے 30 پہاڑ ہیں۔ دنیا میں 8000 میٹر کے 14 پہاڑ ہیں، ان میں سے 5 پاکستان میں ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جس میں ہر قسم کی زمین موجود ہے۔ ہمارے ملک میں 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد موسم بدل جاتا ہے۔ جیکباباد میں 50 سینٹی گریڈ گرمی پڑتی ہے اور عین اس وقت ناگا پربت، K2، ہندوکش اور راکاپوشی کا درجہ حرارت -50 ڈگری ہوتا ہے۔ ملک میں بیک وقت صحرا بھی ہیں، سمندر بھی، دریا بھی، میدان میں یہ سرسبز پہاڑ بھی، خشک اور بنجر چوٹیاں بھی، اور برف کی ایسی غاریں بھی جن میں آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ اس میں جدید ترین تہذیب 5000 سال پرانی سویلائزیشن کے ساتھ سانس لیتی ہے۔ اس میں منجو دڑو بھی ہے، بدھ مت کی قدیم یونیورسٹی بھی، اور سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک صاحب کی جائے پیدائش بھی، اور ایسے پہاڑ بھی جن کے پتھروں پر آج تک طوفان نوح کے نشان موجود ہیں۔ دنیا میں اس وقت 200 کے قریب ممالک ہیں، جن میں پاکستان ایک ملک ہے جو روس سے کم از کم 10 گنا چھوٹا، لیکن اس کا نہری نظام روس کے نہری نظام سے 3 گنا بڑا ہے۔ پاکستان دنیا میں مٹر کی پیداوار کے لحاظ سے دوسرے، خوبانی، کپاس، گنے کی پیداوار کے لحاظ سے چوتھے، پیاز اور دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے 5ویں، کھجور کی پیداوار کے لحاظ سے 6، آم کی پیداوار کے لحاظ سے 7ویں، ٹیکسٹائل اور چاول کی پیداوار کے لحاظ سے 8ویں نمبر ہے۔ گندم کی پیداوار کے لحاظ سے 9ویں اور کینو کی پیداوار کے لحاظ سے 10ویں نمبر پر ہے۔ اس کی صرف گندم کی پیداوار پورے براعظم افریقہ کی پیداوار سے زائد اور براعظم جنوبی امریکہ کی پیداوار کے برابر ہے۔ پاکستان دنیا میں صنعتی پیداوار کے لحاظ سے 55ویں نمبر پر ہے، کوئلے کے ذخائر کے اعتبار سے چوتھے اور تانبے کے ذخائر کے اعتبار سے 7ویں نمبر پر۔ اس کے گیس کے ذخائر ایشیا میں 6 نمبر پر ہیں۔ میزائل ٹیکنالوجی میں پہلے، دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بھی، اور دنیا کے ان 2 ممالک میں سے ایک ہے جو کلمے کی بنیاد پر بنے ہیں۔ یہ ملک کوئی عام ملک نہیں، اس ملک کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ یہ ملک 50 لاکھ شہداء کی قربانیوں سے تعمیر ہوا۔ آپ کے دشمن آپ کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ مایوس کبھی مت ہونا، اس ملک پر سایہ ذوالجلال ہے۔ اس ملک پر کرکٹ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اللہ اس ملک کو T20 کا چیمپئن بنوا دیتا ہے۔ پوری قوم دیوانوں کی طرح اس وطن کی مٹی پر اپنا تن، من، دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اپنی اپنی ذمہ داری کو جانیے، کون خوش نصیب ہوتا ہے، یہ اپنے اپنے نصیب ہے۔ ہمارا K2 اکیلا ہمارے تمام قرضے اتار سکتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ ہم فیری میڈوز سے اربوں روپے کما سکتے ہیں، ہم نے آج تک اس پوٹینشل کو استعمال نہیں کیا۔ ہم صحت کو انڈسٹری نہیں بنا سکے۔ آج ہم وطن عزیز کا وہ رخ پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ جائیے گا نہیں کہیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والوں سے YouTube پر ہمارا اسپائڈر بل چینل سبسکرائب کر لیں۔ شاہراہ قراقرم چین اور پاکستان کے انجینئروں کا کمال ہے۔ یہ 1300 کلومیٹر شاہراہ ہے، 806 کلومیٹر پاکستان اور 494 کلومیٹر چین میں، جو حویلیاں سے شروع ہو کر چین کے شہر کاشغر پہنچ کر ختم ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی شاندار اور حیران کن سڑکوں میں شمار ہوتی ہے۔ چین اور پاکستان کے 25,000 کارکنوں نے سنگلا پہاڑ توڑ توڑ کر بنائی ہے۔ اس کی تعمیر کے دوران سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ یہ 1979 میں چین کا جدید ترین دنیا کے ساتھ پہلا زمینی رابطہ تھا۔ اس سڑک نے پاکستان اور چین کے لوگوں کی زندگی میں شاندار کردار ادا کیا۔ چین 80 کی دہائی تک دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ دنیا کی کوئی فلائٹ چین جاتی تھی اور نہ ہی چین اترتی تھی۔ چین کے مسلمان عمرہ اور حج کی نعمت سے محروم تھے۔ چین میں قرآن کی اشاعت نہیں ہوتی تھی۔ اس سڑک نے چین کے مسلمانوں پر عمرہ، حج اور قرآن کا راستہ کھول دیا۔ چینی مسلمان شاہراہ قراقرم پر بسوں، گھوڑوں اور پیدل سفر کرتے ہوئے راولپنڈی آتے اور جہاں سے PIA کے ذریعے مکہ اور مدینہ پہنچ جاتے۔ یہ لوگ واپسی پر پاکستان سے قرآن کریم کے نسخے بھی لے جاتے۔ چینی حاجیوں نے پاکستان میں چینی مصنوعات بھی متعارف کرائیں۔ راولپنڈی کالے روڈ پر ان کی سرائیں ہوتی تھی، جسے اب چائنا مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ فلیٹ تک ان سراؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ دن کو اپنا سامان سرائے کے باہر سجا کر بیٹھ جاتے۔ پاکستانی یہ سامان خریدتے، شام کے وقت یہ سرائے کے اندر چلے جاتے۔ اس سامان میں سنہری رنگ کا سیفٹی ریزر بھی ہوتا تھا۔ پاکستان کی ایک نسل نے اس سیفٹی کے ذریعے شیو کی ہوگی۔ یہ سیفٹی ہمارا چین کے ساتھ پہلا باقاعدہ تجارتی تعارف تھا۔
ये तो आरफ कराक्रम की मेहरबानी से हुआ। व्यूअर्स, आप पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, स्कर्दू, चित्राल, कैलाश, नरान, कगान, खपलो, हुंजा और देसाई का विजिट करें। आप इन इलाकों के शहर में गुम होकर रह जाएंगे। कचूरा के मकाम पर शंग्रीला के नाम से एक छोटी सी जन्नत हकीकतन दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में शुमार होती है। आप दुनिया में जहाँ भी जाएंगे गैर इरादी तौर पर इस मकाम का तकाबुल पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से करते रहेंगे और आखिर में हर बार इस नतीजे पर पहुंचेंगे हमारे इलाके यूरोप से ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने शुमाली इलाका जात की सूरत में जमीन पर जन्नत का अक्स उतारा है। आपको शफाफ पानी के बेशुमार चश्मे, आबशारें, झीलें मिलती हैं। सेबों, खुबानियों के दरख्त, आप एक मरतबा खुबानी खा लें फिर कभी इसका जायका भूलेंगे नहीं। कैलाशी दोशीदाएं परियों की तरह रंग बिरंगे पैरहनों में मलबूस हैरानी से स्याहों को देखती हैं और कई स्याहों को देखते ही किसी दरख्त या दीवार की ओट में हो जाती हैं। कैलाशी जो सिकंदर आजम के वारस माने जाते हैं, सालाना चिलम जोशी मेले में रक्स और मजहबी रसूमात अदा करते नजर आते हैं। जो मई के महीने में होता है, ये लोग एक मैदान में अपना सकाफती लिबास पहनकर ढोल की थाप पर मकसूर रक्स करते हैं और हम में से जिस शख्स ने जागती आंखों से गिलगित बल्तिस्तान के जिला दीर में वाक़या पाकिस्तान की दूसरी और दुनिया की नवी बुलंद तरीन चोटी नागा पर्वत के ऐन दामन में फेरी मेडोज नहीं देखी, वो बदनसीब इंसान है। आपको बेशुमार मुल्की और गैर मुल्की सफरनामों में इसका तज़किरा मिलेगा। कराक्रम के एक तरफ बुलंदोबाला पहाड़ हैं, दूसरी तरफ गहराई में दरिया सिंध। इस्लामाबाद से गिलगित तक 628 किलोमीटर का फासला है। ये सफर इंतहाई कठिन है। चलास खुश्क, बंजर और संगला पहाड़ों में घिरा हुआ है। रायकोट ब्रिज ये मकाम फेरी मेडोज का बेस कैंप है। यहाँ से असल सफर शुरू होता है। आम गाड़ियाँ यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती, चुनाचा लोग अपनी गाड़ियाँ यहाँ छोड़ जाते हैं और बाकी सफर मकामी जीपों पर तय होता है। रायकोट ब्रिज पर मकामी लोग जीपों के साथ खड़े होते हैं। इन लोगों ने जीपों की आमदो रफ्त का बाकायदा सिस्टम बना रखा है। ये अपनी अपनी बारी पर मुसाफिर उठाते हैं। इन्होंने रेट्स भी तय कर रखे हैं। शुरू में रेट्स ज्यादा लगेगा, लेकिन जब तातू गांव पहुंचेंगे तो ये लोग इस किराए के हकदार महसूस होंगे। आप पानी को दो पहाड़ों के कदमों में बहता हुआ देख सकते हैं। तातू इस सफर का वाहिद स्टॉप ओवर है, जो सल्फर के गर्म चश्मे की वजह से तातू यानी गर्म कहलाता है। तातू खौफ के सफर में अमन का बहुत बड़ा जजीरा है। जीपों वाले वहाँ उतार देते हैं। एंड पॉइंट पर पोर्टर और घोड़े भी दस्तयाब हैं। ये मुश्किल सफर है, ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, लेकिन सफर के मनाजर इंतहाई खूबसूरत। जगह जगह पानी के झरने, चीड़ और पाइन का जंगल है। दूर नागा पर्वत की चोटी भी नजर आती है। आप जन्नत के दरवाजे पे खड़े होते हैं, जिसको अंग्रेजों ने परियों की चिरागाह यानी फेरी मेडोज कहा था। यकीनन इस जगह में कोई ऐसी खूबी जरूर है जो यूरोप में नहीं। वो खूबी क्या है? एक मोड़ के बाद फेरी मेडो आ जाता है। पहाड़ों में गुम हजारों साल पुरानी जन्नत आपके सामने आ जाती है। आप 16-17 हजार फुट की बुलंदी पर दुनिया का अजीम तरीन पहाड़ नागा पर्वत आपके सामने बादलों की चादर सिरकती है। बुलंदियों पर बर्फ ने सफेद अबा ओढ़ रखी है और इसके दरमियान फेरी मेडो है। एक छोटा सा सरसब्ज मैदान, लकड़ी के चंद मकान, मकानों के गिर्द झरने, नदियां और चश्मे बह रहे हैं। इर्द गिर्द घोड़े और भेड़ें चरती हैं। एक नदी झील में उतरती है। झील की सतह पर दरख्तों का सब्जा, पीछे तराइयां और जंगल में उठता धुआं, जो माहौल को मजीद रोमांटिक बना देता है। फेरी मेडो एक तवील, जीती जागती, धड़कती हुई पेंटिंग है। आप इस कैफियत में कितनी सदियां गुजार देंगे काउंट नहीं कर सकें। इसको देखने में कोई ऐसा मंतर है, ऐसी बेशुमार खूबियां हैं जिससे अमेरिका और यूरोप महरूम है। फेरी मेडोज में हट की शक्ल के होटल हैं। इन हट से नागा पर्वत पूरी तरह नागा नजर आता है। नागा पर्वत महज एक पहाड़ नहीं, ये एक तिलिस्म है जो हर देखने वाली आंख को अपनी तरफ खींच लेता है। ये तिलिस्म 200 साल से को पैमाओं को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन जो भी इसकी तरफ जाता है वो वापस नहीं आता। इसी वजह से इसे किलर माउंटेन, कातल पहाड़ कहा जाता है। नागा पर्वत शुमाली इलाका जात की चार अतराफ से अप्रोचेबल है, लेकिन फेरी मेडो इसकी मुश्किल तरीन अप्रोच है। 1895 में बरतानवी को पैमा इसे सर करने के लिए निकला, लेकिन टीम समेत इसकी बर्फ में दफन हो गया। इसके बाद को पैमाओं की कतार लग गई। जो गया वो फिर वापस न आया। आज तक सिर्फ 2 टीमें इसके दामन को हाथ लगाने में कामयाब हुई हैं, एक 1953 और दूसरी 1995 में। बाकी तमाम इसकी बर्फ में हड्डियां बनकर दफन हो गए। फेरी मेडो में सर्दी होती है। दिन के वक्त दर्जा हरारत 4-5 डिग्री होता है और रात को ये मनफी में चला जाता है। आप लकड़ियां जलाकर हाथ तापने पर मजबूर हो जाते हैं।
फेरी मेडो से 1 घंटे की मुसाफत पर ब्याल कैंप आता है। ये नागा पर्वत का सेकंड लास्ट कैंप है। इसका रास्ता दुनिया के खूबसूरत तरीन रास्तों में शुमार होता है। ये दरख्तों के दरमियान निस्बतन खुली जगह है जहाँ किसी मेहरबान ने हट्स बना रखे हैं। आप हट्स के दरमियान बेंचों पर बैठ जाएं। ब्याल से 3.5 घंटे की मुसाफत पर नागा पर्वत का बेस कैंप है। ये सीधी और मुश्किल चढ़ाई है। ब्याल के बाद पानी और ऑक्सीजन दोनों खत्म हो जाते हैं। आप नागा पर्वत के बेस कैंप जाना चाहते हैं तो आपके पास पानी का जखीरा होना चाहिए, वरना ब्याल से वापस फेरी मेडो चल पड़े, लेकिन आप अपना दिल, अपना एहसास ब्याल ही छोड़ेंगे, जहाँ जिंदगी की कोई टाइम लाइन नहीं, कोई डेड लाइन नहीं, जहाँ कोई बिल नहीं, कोई फोन कॉल और कोई गुरती ही आंख नहीं, जहाँ किसी का इंतजार नहीं, जहाँ वक्त बर्फ में जमकर ठहर जाता है। ये अजीब जादू नगरी है। आप वापसी के लिए बाबूसर टॉप की तरफ मुड़ जाएं। बाबूसर टॉप शुमाली इलाका जात का बुलंद तरीन दर्रा है। इसके एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान और दूसरी तरफ कागान की वादियां हैं। बाबूसर टॉप पर साल के 12 महीने बर्फ की तहें जमी रहती हैं। आपके सामने बाबूसर टॉप की सफेद पोस्ट चोटियां, दाएं हाथ बर्फ और बाएं हाथ गिलगित बल्तिस्तान की वादियां और पहाड़ है। ये भी आपकी जिंदगी का एक शानदार लम्हा होगा। ये भी तस्वीर बनकर आपके जहन में महफूज हो जाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा शानदार मंजर जो ही बाबूसर टॉप की दूसरी तरफ मुड़ेंगे, दरियाए कुनहार की वादी अपना घूंघट आपके सामने खोल देगी और मुंह से बेख्तियार चीख निकल जाएगी। ये एक लाइफ टाइम तजर्बा होगा। सामने दर्जनों सफेद पोश पहाड़ियां, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ, डलवानों पर सब्जा और सब्जे की आखिरी लाइन पर पानी का ये लाजवाब मंजर है। ये पिक्चर पोस्ट का मंजर है। कदमों में दूर तक नदी बहती है और ऊंचाई से यूं महसूस होती है जैसे किसी शरारती बच्चे ने टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींच दी हो। ये मंजर जिंदगी के तमाम देखे चखे छुए मनाजर का बाप है। आप अपने दिल, यादाश्त, आंखों को कैमरा बना लें। आप अपने वजूद में इस मंजर की ठंडक मिठास को महसूस करेंगे। जायका सिर्फ खटास, मिठास और तुरश नहीं होता, ये बिछड़े हुए बेनाम रिश्तों की सुलगती हुई याद भी होता है। आपने बाबूसर टॉप तक पहुंचने से पहले ये सब कुछ सुन रखा होगा, लेकिन आप उसे महसूस उस दिन करेंगे। वो आंखों से लेकर रूह तक एक ऐसा सरशार कर देने वाला लम्हा होगा। बाबूसर टॉप से नरान तक 1 घंटे का सफर है। नरान से बालाकोट तक दोनों अतराफ पहाड़ सब्ज भी हैं और खूबसूरत भी। लोगों ने पहाड़ काट कर खेत बना रखे हैं। ये खेत सब्जे की लंबी ऊंची सीढ़ियां हैं। इन पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये रेशम की तरह अपना रंग बदलते हैं और आप एक झलक में सब्जे की 4 तहें देखते हैं और आपको ये मंजर बाबूसर टॉप से बालाकोट तक मुसलसल मिलता है। नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी तक रस्से की सीढ़ियां बिछा दी हैं। आज एक बच्चा भी माउंट एवरेस्ट की बुलंदियां छू सकता है। दुनिया भर से हजारों सियाह और कोह-पैमा हर साल नेपाल जाते हैं। नेपाल को कई मिलियन डॉलर देकर वापस जाते हैं। पाकिस्तान का लोकल सियाह भी गर्म तपते हुए शहरों से निकलना चाहता है, लेकिन इसके लिए रहनुमाई का कोई निजाम है और ना ही सड़क। चुनाचा ये कड़ाई गोश्त खाकर अपनी गर्मियां लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में गुजार देता है। हम अगर सियाहती सनत को डेवलप करें तो हम खुशहाल भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए विजन और फोकस चाहिए और हमारी क़यादत में इन दोनों का फुकतान है। ये अपनी हिरस के नागा पर्वत को पजामा पहनाने में मसरूफ हैं। इन्हें पाकिस्तान का नागा पर्वत खाक नजर आएगा। ये थी पाकिस्तान के मुतल्लक मेरी अदना सी कोशिश। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए अपनी राय का इजहार करें। मुझे दें इजाजत। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।